गुंजन चल रहा है नेट? हाँ हाँ चल रहा है, पर ये मतलब मेल क्यों नहीं खुल रहा है, पता नहीं। सुनील का नहीं, मनीष का है। अच्छा चलो आया, हाँ बोले मेरा ये खुल ही नहीं रहा है, अब करूँ कैसे क्लास जब डाउनलोड नहीं होगा तो। एट 8106 65620 हाँ 656। Hello, good morning students. Good morning, ma'am. Good morning. Let us start with the topic of this polarization. The last class we discussed the topic of Nicol prism. Okay, now let us discuss some plates. That is, यहाँ पे polarization में we have to use two types of retardation plate. So actually क्या है? What do you mean by this retardation plate? Yes, सबको आवाज आ रही है बच्चे? Am I audible properly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And another thing, very start में आपको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि as per university guidelines, your exam is start from mid-sem exam will start from 15th of February. 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा. ओके, अभी वो बताएंगे कि कैसे होगा. आज आपको फाइनल कंफर्म कर देंगे कि कैसे होगा एग्जाम. ओके, मैंने आपको बोला था यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं, एनी टाइम इट कैन टेक योर एग्जाम. ठीक है, बाकी आ जाए, अगर सिलेबस का तो कुछ शायद आएगा नहीं, पर क्या आएगा अकॉर्डिंगली टुडे फाइनल हो जाएगी, शायद मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एज पर एज फिजिक्स सिलेबस इज कंसर्न, ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे. आगे का फिर आपको बताऊंगी आज. समझ गए? तो ये वेरी वेरी इजी टॉपिक है. ये जो प्लेट भी है इजी टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, देख लो. इसका छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, यू कैन वेरी इजीली डू दिस थिंग्स. एक्चुअली इस चैप्टर में कोई है नहीं मुश्किल, जैसे आप कर सकते हो. न्यूमेरिकल भी कुछ भी हो, बहुत इजी टॉपिक आएंगे. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. सो रिटार्डेशन प्लेट. सो ये क्या है? दिस इज ए ऑप्टिकल डिवाइस व्हिच इंट्रोड्यूसेस फेज डिफरेंस. एक्चुअली रिटार्डेशन प्लेट क्या होता है? दे आर मेड फ्रॉम डबल डिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, एंड इसका थिकनेस को ऐसे एडजस्ट किया जाता है सो दैट इट कैन क्रिएट ए डेफिनेट फेज डिफरेंस बिटवीन द फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस, you can say anything between the O ray and E ray. Okay,
रिटार्डेशन प्लेट क्या है? इट इज एनी ए प्लेट मेड फ्रॉम ए डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, ये कैल्साइट क्रिस्टल से, क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बन सकता है, सो दैट इसको थिकनेस को ऐसे एडजस्ट किया जाता है सो दैट इट कैन क्रिएट ए डेफिनाइट फेज डिफरेंस बिटवीन द ओ रे एंड ई रे, ठीक है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ retardation plate. One is known as half wave plate and another is known as quarter wave plate. Okay, half wave plate and quarter wave plate. So what do you mean by this? So ये क्या है, समझ में आया? पहले फेज प्लेट, इसको फेज प्लेट भी कहा जाता है. They are known as retardation plate or they are also known as the phase plate because they are used to create a definite phase difference between the O component and E ray. And there are two types of, one is known as quarter wave plate and another is known as half wave plate. So इसमें you can see जैसे यहाँ पे light, unpolarized light is incident and that is allowed to pass through this at a particular, जैसे भी इसके अंदर propagate करेगा, then it can create a definite path difference. Accordingly, you can calculate the definite phase difference between these two. So let us see what do you mean by a quarter wave plate. So quarter wave plate क्या होता है? इसका नाम ऐसे जैसे लिखा गया, quarter मतलब it is, suppose this is a plate, this is made from the double refracting crystal and light, this is unpolarized light is allowed to propagate inside this thing. तो यहाँ पे जैसे ये enter करेगा, when this is entering inside the crystal, it will split into, one is E component E ray, another is your O ray. O ray and E ray में ये splitting होगा. E and O ray में it will split into two components. So ये E में and O में split होगा. So इसमें और इसमें, so ये भी कुछ इसका suppose इसका thickness is T. So it is propagating certain part T and ये भी propagate कर रहा है certain part T. So it will create a phase difference or path difference between the E and O ray. So इसका path is different and इसका path is different. Thickness of the crystal is T, but it will propagate T thickness, it will propagate T thickness, but दोनों का velocity अलग and दोनों का refractive index is also different. So इसका refractive index is mu E and इसका refractive index is mu O. So what is the optical path traveled by E ray? E ray क्या? Optical path कितना होगा? बोलो. What is the path traveled by the E ray? कितना होगा? बोलो. अरे path क्या होता है? What is optical path? ऑप्टिकल पाथ हमने पढ़ा था, क्या होता है? व्हाट डू यू मीन ऑप्टिकल पाथ? बहुत बार इसका यूज कर लिया है. अरे बोलो. हम 2 पावर लैम्डा. ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? अरे बोलो, और कोई बोलो, क्या होता है ऑप्टिकल पाथ? इतना सारा हमने थिन फिल्म में सारी चीज कर लिया, क्या होता है? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू द एक्चुअल पाथ. ये होगा नहीं, म्यू इनटू एक्चुअल पाथ, दैट इज द ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. A से B गया, in air मतलब हम कहेंगे distance traveled by light is AB. And when it is propagated inside glass, इसका refractive index mu है, then optical path कितना हुआ? Mu into AB. Okay? Mu AB. Okay? So यहाँ पे optical path कितना होता है? Mu into, that is the path traveled by geometric path. We can say this is the geometric path or actual distance between the 2 points. अभी ये कितना path गया? O ray कितना गया? Thickness of the crystal is T. So ये कितना propagate किया? Mu O T. And E ray कितना path propagate किया? That is mu E T. So what is the path difference between these two? So path difference between O ray and E ray कितना होगा? That will be equals to mu O T minus mu E T. ये प्लस माइनस को इग्नोर करेंगे, ठीक है? डिफरेंस आएगा mu O T minus mu O T. We have to ignore the plus and minus. So this is the path difference कितना है? That is mu O T minus mu O T. Or you can write this is T into mu O minus mu E. This is T into mu O minus mu E. Okay, optical path propagated by the traveled by the E and O का क्या है? mu T and इसका है mu T. So path difference will be T into mu minus mu. And quarter wave plate क्या कहता है? quarter wave plate क्या कहता है? अगर ये पार्ट इसका थिकनेस को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे फॉर अ डेफिनेट वेवलेंथ लैम्डा, इसका थिकनेस को ऐसे एडजस्ट करेंगे सो दैट डेल्टा का वैल्यू कितना होगा? क्वार्टर. क्वार्टर मतलब लैम्डा बाय 4. ओके, लैम्डा बाय 4 इनटू पाथ कितना, दिस पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा बाय 4 एंड इसका वैल्यू किससे इक्वल होगा? पाथ डिफरेंस कितना है? T इनटू mu O minus mu E. तो थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? thickness of the crystal T will be equals to lambda by 4 into mu O minus
mu e. Okay, so thickness of the crystal T equals to lambda upon 4 into mu minus mu e. ठीक है, so ये कितना पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगा, पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4. पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा अगर है देन फेज डिफरेंस कितना होगा, बोलो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस. अरे बोलो, ये बेसिक चीज के लिए डोंट वेस्ट टाइम. रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा. 2 पाई बाय लैम्डा. अगर हम बताते हैं पार्ट डिफरेंस विल बी लैम्डा बाय 4, तो इसके करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस को लिखा जाता है बाय मींस ऑफ डेल्टा. ये डेल्टा एंड पार्ट डिफरेंस से लिखा जाता है डेल्टा. सो डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा. सो अगर कोई थिकनेस t कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट करता है लैम्डा बाय 4, तो उससे करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा, pi by 2. pi by 2. So it will create a phase difference of delta equals to pi by 2 between the E ray and O ray. ठीक है, तो इसका छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं. तो ये क्या है, ये दिस t equals to, you can see this t equals to lambda by 4 into mu minus mu. ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल कितना होगा, lambda by 4 mu minus mu. अकॉर्डिंगली विल डिफाइन अनदर प्लेट. इसका यूज आएगा आगे, हम इसको यूज कर सकते हैं कि इसका ये एक्चुअली क्या होता है, क्वार्टर वेव प्लेट इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट. ओके, ये इसके लिए जनरल इसका यूज होता है. एंड अभी और एक प्लेट है दैट इज नोन एज हाफ वेव प्लेट. हाफ वेव प्लेट क्या होगा, जैसे जो चीज को क्वार्टर, जहां पे हमने 4 यूज किया है वहां पे हमें 2 यूज करना है. मतलब पार्ट डिफरेंस कितना क्रिएट करेगा, लैम्डा बाय 2. नोट डाउन दिस थिंग बच्चे, ये दोनों फार्मूला लिखो, इसमें से छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे तो आप कर सकते हो आराम से. वेरी इजी फार्मूला. अगर हम वही चीज को देखेंगे, दिस इज ए क्रिस्टल, इसके अंदर पहले अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट. अनपोलराइज्ड लाइट जाके दो पार्ट में डिवाइड हुआ, वन इज ई कंपोनेंट एंड अदर इज ओ रे. ई रे एंड ओ रे में स्प्लिट हो गया. तो ई रे में कितना पार्ट ट्रैवल किया, दिस पार्ट इक्वल्स टू म्यू ई टी. ये कितना पार्ट ट्रैवल किया, दिस पार्ट इक्वल्स टू म्यू ओ टी. तो व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू ओ माइनस म्यू ई टी. अगर वही पार्ट डिफरेंस इक्वेट हो गया किसके साथ, लैम्डा बाय 2. हाफ वेव, हाफ वेव मतलब हाफ ऑफ द वेवलेंथ. पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट यूज्ड. That is delta equals to mu o minus mu t equals to lambda by 2. Or we can write this t will be equals to, यहाँ पे t को लिख सकते हैं, t equals to lambda upon 2 into mu o minus mu e. Okay, तो thickness of the crystal अगर हम इस ऑर्डर में एडजस्ट कर सकते हैं, then this plate can work as a half wave plate. अगर हम इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे then we can use it as a quarter wave plate. ये किसी एक में यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ हमारी फिक्स है. तो अगर हम इसको हाफ वेव प्लेट यूज करेंगे, उसका थिकनेस कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 into mu minus mu e. ठीक है, so this is your half wave plate. एंड यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 दैट इक्वल्स टू mu o minus mu e into t. एंड इसके करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस विल बी डेल्टा इज इक्वल्स टू, फेज डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू कितना होगा, बोलो पाई आरएमएम पाई. तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 5. सो हम इसको कोई आपको पूछेगा, ये जनरली वाइवा का भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज हाफ वेव प्लेट. तो आप क्या बोलोगे, हाफ वेव प्लेट क्या है, बोलो इट इज ए वेव, हाफ वेव प्लेट इज ए plate made from the double refracting crystal so that it can create a part difference of lambda by 2 or a phase difference of pi between the O ray and E ray. ठीक है, so this is your half wave plate and ये भी पोलरिमीटर में यूज होगा. ठीक है, ये पोलरिमीटर में इसका बहुत ज्यादा काम है हाफ वेव प्लेट का. यही हाफ वेव प्लेट समझ पाओगे, इसमें इसका फंक्शन, तभी पोलरिमीटर का हम थ्योरी कैसे काम करते हैं वही समझ पाएंगे. ठीक है, so this is your quarter wave plate and half wave plate. ओके, ये वैल्यू न्यूमेरिकल के लिए बहुत काम है, इसको याद रखना. ओके, चलो लेट अस
अभी इस चीज को पढ़ेंगे, दैट इज दिस इज प्रोडक्शन ऑफ एलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सो इस चीज के लिए ब्लैक बोर्ड चाहिए क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा। ओके, सो आपको इस चीज को, सारी चीज को आपको नोट करना पड़ेगा। Okay, let us see this thing. This is production of elliptically and circularly polarized light. So सबसे पहले आपको समझना है what do you mean by circularly polarized light, what do you mean by elliptically polarized light, and what do you mean by this is partially, or that is a plane polarized light. ठीक है, plane polarized light आपको पता है, that is in the vibrations are confined to one particular direction, then that type of light is said to be a वन डायरेक्शन, मतलब either along x axis or along y axis एक पर्टिकुलर लाइन प्लेन पे ही वाइब्रेट कर रहा है, then that type of light is said to be a plane polarized light. And what do you mean by this is circularly polarized light? circularly polarized light क्या होता है, यहाँ पे जो ये वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन मतलब जनरली लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज द वाइब्रेशन। हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर वाइब्रेटिंग, but since the magnitude of magnetic field is very less, so generally we are considering vibration of the electric field vector. And if the electric field vector of constant magnitude, अगर इसका जो ये है, it constant magnitude में rotates in a plane of circle, okay, then it is that type of light is said to be circularly polarized light. जैसे आप कोई, आपके हाथ में कोई रोप है, उसको रोटेट कर रहे हो, अगर उसका जो सर्कमफेरेंस सर्कल के जैसे हुआ, जो भी उसका पाथ है रोटेशन अगर सर्कल के जैसे हुआ, then that type of wave is said to be circular polarized wave. Accordingly, elliptical polarized wave क्या होता है, if the light electric field vector of the variable magnitude, सर्कुलर में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंटली चेंज होते होते इट इज forming the form of a ellipse, then that type of light is said to be partially polarized light. Okay, and it is a पार्शियल पोलराइज्ड लाइट जो होता है, ये क्या है, जनरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम स्ट्रिक्टली कहते हैं, इट इज पोलराइज्ड। पार्शियल पोलराइज्ड लाइट में क्या है, ये इसमें जो पोलराइजेशन होता है बट अप टू सर्टेन डिग्री, इट इज नॉट कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एंड उसमें इट इज अ मिक्सचर ऑफ थोड़ा सा और कोई जैसे दो कंपोनेंट का मिक्सचर में आ जाता है, एक कंपोनेंट का डोमिनेंस ज्यादा होता है, दैट टाइप ऑफ लाइट इज सेड टू बी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ओके, जस्ट वेट बच्चे, एक मिनट।
Okay, so let us consider this is a now see this thing. हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? ब्लैकबोर्ड दिख रहा है बच्चे सबको? क्लियर है? यस मैम, यस मैम। कितना फील्ड दिख रहा है? क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन तो करेंगे तो इसमें ये पोर्शन दिख रहा है? यस मैम। यहाँ पे मैं भी कर रही हूँ। नहीं मैम, अब नहीं दिख रहा है? ओके। ओके, सो इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे? सो लेट अस कंसिडर दिस इज द, ये जो है ये इसका दे दो, हेडिंग दे दो, दैट इज द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलरली इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट। ये एक डेरिवेशन आएगा इस चैप्टर में, ये एक ही डेरिवेशन है, इसको हम कंसिडर करेंगे। तो लेट अस कंसिडर, ठीक है, लेट अस कंसिडर ए डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, ठीक है, नोट डाउन दिस थिंग, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। ओके, तो हम यहाँ पे इसका this is the direction of the double diffraction crystal, this is the direction of the optic axis of the crystal, and let us consider a beam of plane polarized light. Understand क्या? Let us consider a beam of plane polarized light is incident on a double refracting crystal, and कैसे enter कर रहा है? So it is entering along this direction. कैसे enter कर रहा है? Along this direction, that is it is making an angle theta with the, and ये क्या है? ये जो line मैंने बनाया, this is the optic axis of the crystal, and it is light is entering like this at an angle theta with the optic axis of the crystal, ठीक है। तो जैसे ये इसके अंदर प्रोपेगेट करेगा एंड यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, कौन सा लाइट हो रहा है? दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाटएवर लाइट इज इंसिडेंट, ये क्या है? देखो ए बीम ऑफ लिखा है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो निकोल प्रिज्म से आया हुआ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस, एंड कैसे इंसिडेंट हुआ? इट इज इंसिडेंट एट दिस एंगल। सिटी फिगर है तो हम उसको ऐसे दिखा रहे हैं, इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा। नोट डाउन दिस थिंग। Okay, and crystal the thickness is T. Thickness of the crystal is T. So let us consider it is entering at an angle theta with the direction of the optic axis. जैसे ये इसमें चलेगा, यहाँ पे इस चीज को समझना है आपको। Whenever it is touching the crystal at this point, then it will split into two components. It is a plane polarized incident होगा, तो इसका भी दो कंपोनेंट में प्रोपेगेट करेगा। So ये क्या है? This is the component along the optic axis, and इसको क्या कहा जाता है? This component is known as the E component. Note down this thing, फिगर बनाओ, ये फिगर नहीं है, पीपीटी में this particular फिगर नहीं है, अब इस फिगर को बनाओ। Okay, so E component and this is your, and ये जो है this is your O component. क्योंकि why it is said to be O component? This is the vector nature of light. तो जैसे ये डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में जो भी along the optic axis जाएगा, जिसका वाइब्रेशन along the optic axis होता है, उसको कहा जाएगा E component, and जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, that is known as the O component. ठीक है? ओके, सो बताओ, यहाँ पे लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑर्डिनरी कंपोनेंट कितना होगा? हम यहाँ पे ये थीटा हो गया, हम इसको क्या लिखते हैं? इसको हम we can write, suppose इसका मैग्नीट्यूड इज a, इसका मैग्नीट्यूड अगर a है तो हम इस कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं? a कंपोनेंट को लिख सकते हैं a cos थीटा, और रख के लिख सकते हैं a sin थीटा, एंड हमने नाम क्या दिया है? एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑर्डिनरी कंपोनेंट को क्या लिखा है? दैट इज a sin थीटा इक्वल्स टू b एंड a cos थीटा इक्वल्स टू स्मॉल a। समझ में आया क्या हुआ? ये क्या लिखा? समझ में आया बच्चे? अरे बोलो कुछ। यस मैम। आया नहीं है? आया? ओके, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑर्डिनरी कंपोनेंट हम क्या लिख सकते हैं? a sin थीटा इक्वल्स टू b, एम्पलीट्यूड ऑफ द e कंपोनेंट कितना होगा? a cos थीटा इक्वल्स टू a, एंड जैसे ही ये क्रिस्टल से दोनों रे बाहर निकल के जाएंगे, दोनों के बीच में क्या होगा? इट विल क्रिएट ए पाथ डिफरेंस ऑफ, कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगा? डेल्टा इक्वल्स टू p इनटू म्यू o माइनस म्यू p, इतना पाथ डिफरेंस होगा। मैम दिख नहीं रहा ऊपर। नो मैम। तो अभी लिखो, नोट डाउन, इसको एक चीज लिख लो बच्चे। तो लिखो, on emergence of the crystal, the path difference between the E component, A component will be T equals to mu O minus mu E. Okay, we can write that mu O minus mu E. And the corresponding phase difference कितना होगा? That is 2 pi by lambda into P into mu O minus mu E. Okay, इतना phase difference में they will emerge out of the crystal. O component and E component के बीच में phase difference delta इतना होगा। समझ में आया? ये होगा या नहीं आ रहा है? अरे बच्चे जल्दी जल्दी थोड़ा, yes, ऐसे आपको पता है अभी
आपको ये टॉपिक खत्म करना ही करना है। ओके, सो it will create a phase difference of this between the E component और O component. So let us अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीधा, जैसे इंटरफेरेंस में जैसे करते हैं, एक वेव आया O एक वेव, E एक वेव, अभी इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे। So कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Let us represent both these waves like this. Let us note down y equals to, लिखो, note down, दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? Let us note down this, y equals to a sin theta sin omega t, x equals to a cos theta sin omega t plus delta. ठीक है? So this is for O ray and this is for E ray. Okay? O ray के हम क्या लिख सकते हैं? y equals to a sin theta sin omega t, x equals to a cos theta sin omega t plus delta. तो y को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हमने a sin theta को क्या लिखा? y equals to b sin omega t, and x को क्या लिख सकते हैं? That will be equals to a sin omega t plus delta. क्योंकि हमने इस चीज को क्या लिया है? a cos theta को क्या लिया है? a लिया है, a sin theta को क्या लिया है? b लिया है। ओके, दिख रहा है बच्चे? मेरे सामने आने से आपको दिक्कत होती है देखने में या नहीं? दिख रहा है? दिख रहा है। x equals to a sin omega t plus delta and this is y equals to b sin omega t. लिख सकते हैं क्या? ये क्या रिप्रेजेंट किया बताओ? जैसे इस क्रिस्टल से एक कंपोनेंट O कंपोनेंट एक निकल के आया, E कंपोनेंट एक निकल के आया, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? डेल्टा हमने लिखा। जैसे हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक जा रहा था x डायरेक्शन में, एक जा रहा है y डायरेक्शन में, तो हमने x को क्या लिखा? a cos थीटा क्या है? दिस इज द, इसका इस साइड को हमने क्या लिखा था? दैट इक्वल्स टू, इस साइड में जो जा रहा था उसका मैग्नीट्यूड को हमने लिखा था इन द फॉर्म ऑफ b। अब फेज के साथ लिखेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों के बीच में एट एनी इंस्टेंट t, दिस इज द फेज डिफरेंस डेल्टा है, तो एक का फेज कितना है? sin ओमेगा t, एक का फेज ओमेगा t और एक का फेज डेल्टा है, मतलब ओमेगा t प्लस डेल्टा, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, वी कैन राइट, लेट अस, हमने इसको क्या लिखा? दोनों के बीच में फेज के फॉर्म में ये आएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका फेज फैक्टर, तो अकॉर्डिंगली इसको हमने क्या लिखा? a b sin ओमेगा t, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। ओके, हाँ बच्चे समझ में आया क्या लिखा? अभी इसके बाद डेरिवेशन फिर फटाफट चलेगा। ओके, इस दोनों को इक्वेशन 1 2 नाम दे दो, x वाले को इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। ओके, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अभी इसी को हम यहाँ पे तो मैंने लिखा है, पर आप इसमें ब्लैक बोर्ड से लिखो, समझ के लिखो बच्चे, एक बार इसको समझना है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अभी इक्वेशन 1 को ओपन करेंगे, यानी कितना हो जाएगी? लिखो, ओपन करो, साइन को a sin ओमेगा t cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t sin डेल्टा होगा। लिखो बच्चे, फटाफट लिखो। ओके, एंड यहाँ पे क्या है? ऊपर हमारी क्या है? ऊपर वाले इक्वेशन में y इक्वल्स टू b sin ओमेगा t, इक्वेशन 2 जो है दैट इंप्लाइज हम y by b को क्या लिखेंगे? दैट विल बी इक्वल्स टू sin ओमेगा t, एंड अकॉर्डिंगली cos ओमेगा t कितना हो जाएगी? cos ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t अंडर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर by b स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos ओमेगा t। अभी इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे x के जो लिखा है, अभी a को नीचे ले आते हैं, x by a इक्वल्स टू sin ओमेगा t cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t sin डेल्टा। अभी इसको सब्स्टिट्यूट करो, लिखो। हाँ बच्चे, डेरिवेशन लिखो, लिख रहे हो ना? नहीं सर, हाँ बच्चे लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? हाँ लिखो, ये डेरिवेशन है, ये एक डेरिवेशन है, इसको लिखो अच्छे से। So this is x by a, and यहाँ पे पीपीटी में वही लिखा है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, क्योंकि पीपीटी में इक्वेशन फॉर्म में इसमें बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो आप इसको ऐसे समझ लो, उसमें शायद आपको कोई चीज सही समझ में ना आ सके। अभी क्या है? अभी
वैल्यू पुट करो इसका, जिसका वैल्यू निकाला cos ओमेगा t का वैल्यू पुट करो तो कितना होगा, sin ओमेगा t इक्वल टू कितना है y by b, दिस इज y by b, दिस इज cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t का वैल्यू कितना है, दैट इज 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अंडर रूट sin डेल्टा। ओके, अभी x माइनस a, दिस इज x माइनस a माइनस y by b cos डेल्टा इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर sin डेल्टा। यहां पर लिख लिया बच्चे, लिखो, कन्वर्ट करके इसको लिखो फटाफट। एंड एनीवन सेंड मी अटेंडेंस। ओके, चलो ओके मैम। अभी क्या करेंगे, वी गॉट दिस इक्वेशन, इसको अगर इक्वेशन 3 लिखेंगे देन स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, स्क्वायर करो इक्वेशन 3 को, स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो इसको इक्वेशन 3 क्या है, x माइनस a, x बाई a माइनस y बाई b cos डेल्टा, इसको स्क्वायर करेंगे, तो इसको स्क्वायर करो और यहाँ पे इसको भी स्क्वायर करो, देन क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप लिखो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सॉरी स्क्वायर करके लिखो, दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस माइनस 2xy अपॉन ab cos डेल्टा इक्वल टू, दैट इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, so this is y square upon b square cos square delta minus 2xy upon ab cos delta। ठीक है, we got this equation। ओके, आया सबका, सबने किया? यस मैम। हाँ, तो अभी इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज y स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा, दिस इज y स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा, ये माइनस से इधर साइड जाके प्लस हो जाएगा, देन ये कितना बन जाएगी, दिस इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड ये क्या बनेगी, y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस अपॉन b। देखो ये sin स्क्वायर इधर आ गया, देन cos स्क्वायर का sin स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2xy अपॉन ab cos डेल्टा। ओके, एंड यहाँ पे और रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, यहाँ पे अगर 1 था, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आ गया ओनली sin स्क्वायर डेल्टा। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन। ठीक है, अभी दिस इज वन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन है। नीचे वाला मिटा दो बच्चे, हो गया सबका? फर्स्ट इक्वेशन 1 एंड 2 जो लिखा था डेरिवेशन मिटा रहे हो, आप इसको लिखो। अभी इस इक्वेशन में हम डिफरेंट फेज के फॉर्म में एंटर करेंगे, तो अभी हमारे डिफरेंट केस आएगी, कहाँ पे लीनियरली पोलराइज्ड आएगी, कहाँ पे आपकी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट आएगी, ऑल दिस थिंग्स विल कंसीडर नाउ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, व्हेन वी आर सेइंग यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू, फर्स्ट केस लिखो, 3 केस आएगी, 3 केस में 2 सब केस भी आएगी। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन दिस डेल्टा इक्वल्स टू 0, व्हेन दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 0, 2 पाई 4 पाई एटसेट्रा, देन ये क्या हो जाएगी, फॉर ऑल दिस वैल्यूज cos डेल्टा कितना है, cos डेल्टा 0 का वैल्यू कितना होता है, और 0 कितना है, अरे बोलो 1। 1 sin डेल्टा कितना है, 0। तो ये इक्वेशन का फॉर्म बोलो क्या होगा, अगर यहाँ पे cos का वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसका वैल्यू 0 पुट करेंगे, देन इक्वेशन का फॉर्म क्या बनेगी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab। 2xy upon ab equals to 0। That implies ये क्या है, x by a plus y by b का whole square minus that is x by a minus y by b का whole square। Okay, that equals to 0। That is हम ये लिख सकते हैं y का वैल्यू कितना हो जाएगी, y equals to क्या लिखेंगे, a by b into x या b by a sorry, so y equals to b by a into x। तो ये किसका इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग व्हाट, किसका इक्वेशन ये दिखा रहा है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y equals to mx plus c हम लेते हैं। यस मैम, अगर c नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, so this is ये ओरिजिन से पास कर रहा हूँ। हाँ, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। लिखो लिखो बच्चे, अगर हम ये मिल रहा है, देखो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। सो दिस टाइप ऑफ, अगर इस केस में आया देन हम इसको क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दैट इज दिस इज द केस ऑफ ए linearly polarized और plane polarized light। इक्वेशन पे लाइन मतलब हमें यहाँ पे linearly polarized light मिल सकता है इन दिस केस। ठीक है, कैसे एंटर किया था उसके ऊपर सारी चीज डिपेंड करते हैं, ये चीज हम डिस्कस बता सकते हैं। हो गया। अभी इसमें सेम चीज में हम और एक केस लेंगे, इसका एक सब केस लिखो, वन का ए वन का बी। सपोज डेल्टा इक्वल्स टू और मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 3 पाई 5 पाई। देन मुझे फटाफट इक्वेशन बोलो क्या होगा, बोलो, हाँ बोलो, बोलो फटाफट, सारे बच्चे हो, हाँ आदित्य बोलो, आदित्य कुमार बोलो, एंड आदित्य रावत बोलो, कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो? यस जिशान, आर यू देयर? यस जिशान, आर यू देयर? नहीं, सब लोग सो रहे हो क्या? नो मैम। हाँ बोलो, यहाँ पे क्या होगा ऑन दिस केस? यस प्राची बोलो, क्या आप लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो कुछ भी? फिर बोलोगे एग्जाम हो गया, हमें आता नहीं, हमने पढ़ा नहीं, टाइम नहीं मिला। जब टाइम मिलता है मैम x प्लस a का होल स्क्वायर, हाँ x by a प्लस y upon b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इन दिस केस डेल्टा का वैल्यू क्या, ऑफ डेल्टा विल बी इक्वल्स टू -1, sin डेल्टा का वैल्यू 0। सो दिस इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस होगा, तो दिस इक्वेशन का फॉर्म क्या बन जाएगी, x by a प्लस y by b का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू -b by a into x। ओके, तो इतना सारा जो छोटे छोटे फिगर, इस फिगर मिलने मुझे डिफिकल्टी हुई, तो इस सारे फिगर में दिखाना मुश्किल है आपके लिए। तो आप ऐसे ब्लैक बोर्ड में इसको समझ लो, बुक में मिल जाएगी आपको सारे फिगर। तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप मतलब लाइन को कैसे दिखाएंगे, वी कैन शो द लाइन लाइक दिस। ओके, दिखा सकते हैं, यहाँ पे स्लोप कितना आया, -b by a। नेगेटिव स्लोप मतलब लाइन ऐसे होगा, नाउ अभी सेकंड केस डिस्कस करो। बोथ द केस, वन में ए में भी लाइन आ रहा है, बी में भी लाइन आ रहा है। सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे। सेकंड केस में क्या है, वो डेल्टा इक्वल्स टू पाई बाई 2। ओके, सेकंड केस लिखो, ये हो गया बच्चे, सबने लिख लिया इसको, ये हो गया। यस मैम। हो गया, मिटा दो, सेकंड केस लिखेंगे। यस मैम। क्योंकि और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा और इंटरेक्शन में तो नहीं आ रहा है। अभी ये दोनों का केस आएगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अभी सर्कल कब आएगा, पहले सर्कल का केस देखते हैं। सर्कल का एलिप्स का अभी कब आ सकता है, बोलो, डेल्टा इक्वल्स टू पाई बाई 2 अगर लेंगे देन क्या होगा, पुट करो। मैम इलिप्टिकल होगी, मैम इलिप्स की इक्वेशन आ रही है, जनरल इक्वेशन। वेरी गुड, डेल्टा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट करेंगे, देन कितना आ जाएगी, इसका वैल्यू पाई बाई 2 मतलब इसका वैल्यू कितना है, 0, इसका वैल्यू हो गया 1। cos डेल्टा कितना हो गया, 0, sin डेल्टा हो गया 1। तो ये कितना होगी, दिस इज x स्क्वायर upon a square plus y square upon b square is equal to 1। तो ये क्या है, वी आर गेटिंग, लिखो यहाँ पे इसको लिखो, दिस इज स्पेसिफाई करो, दिस इज इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं अंडर दिस केस। यहाँ पे भी हमारी इसमें बहुत सारे केस आते हैं कि ये कैसे राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड इलेक्ट्रिकली पोलराइज रहेगा। पर यहाँ पे खाली आप एक ही चीज डिस्कस करो, बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस करने के लिए अभी नहीं कर पाएंगे। तो आप ओके, एक ही केस हम देखते हैं। सो दिस इज अंडर दिस केस व्हाट वी एंट्री कैन देता हूं, वेट कर रहे हैं बच्चे।
हाँ हाँ दे दिया अभी, वही तो देख रही थी अभी। ओके हो गया, सबका एंट्री हो गई और कोई तो अभी नजर नहीं आ रहे, बाकी मैं बताती हूँ अभी। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलएस। तो अगर फेज डिफरेंस बिटवीन दिस डेल्टा इक्वल्स टू पाई बाय 2 होगा, देन वी आर गेटिंग दिस थिंग। तो यहाँ पे थर्ड केस अभी देखेंगे। थर्ड केस क्या है? डेल्टा इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड और क्या केस आ जाएगी? व्हेन दिस a इक्वल्स टू b। हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे व्हेन दिस a इक्वल्स टू b, देन इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे? सेम केस। यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू पाई बाय 2 मतलब यही इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया a इक्वल्स टू b, देन इक्वेशन क्या आ जाएगी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। Circle. Yes, ma'am. दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे भी हम इसको ऐसे लिखा सकते हैं, अंडर दिस केस हमें क्या मिलेगा? वी कैन गेट ए सर्कुलर पोलराइज्ड लाइन। इसमें बहुत सारी फिगर आपको बुक में मिल जाएगी, उसको देख लेना। तो मेन केस जो आता है यही सभी में डेल्टा का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके वी आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, दैट इज वी आर गेटिंग ए सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइन। अभी ये बताओ a इक्वल्स टू b का मतलब क्या है? बोलो, व्हाट डू मीन बाय दिस a इक्वल्स टू b? a इक्वल्स टू b का मतलब बोलो। a भी कहां पे लिया था उस पे चलेंगे। जब हमने a इक्वल्स टू b बता दिया, फिर a कहां पे लिया था, b कहां पे लिख दिया था वो बताओ। a कहां पे लिया था? हमने ये लिखा था, हमने यहाँ पे लिख लिया a इक्वल्स टू b होने से वी आर गेटिंग सर्कल a इक्वल्स टू b। अगर a इज नॉट इक्वल्स टू b देन हमें क्या मिलता है? एल्स मिलता है। a इक्वल्स टू b होने से हमें मिलता है सर्कल। तो a भी क्या है बताओ पहले, a क्या लिया था, b क्या लिया था? हमने ये लिखा था ना, a इक्वल्स टू a cos थीटा एंड b इक्वल्स टू a sin थीटा, याद है? व्हाट इज दिस a Yes. एंड b? यस मैम। हमने क्या कंसीडर किया था? एक ऐसे डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के अंदर जो भी लाइट इसमें एंटर किया था अलोंग द डायरेक्शन थीटा पे, उसका मैग्नीट्यूड कितना था? 1। एंड ये थीटा डायरेक्शन गया था तो उसका एक कंपोनेंट a sin थीटा आया था और एक कंपोनेंट b sin थीटा था, जिसको हमने लिया था ab। अगर हमने a इक्वल्स टू b ले लिया देन थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा बोलो? अगर हमने ले लिया a इक्वल्स टू b देन थीटा कितना होगा? Pi by 4. पाई बाय 4। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो थीटा का ये याद करो कि क्वार्टर वेव प्लेट में जब एंटर होता है, अभी आगे डिटेक्शन में आएगा, उसको हम फटाफट पाई बाय 4, उसमें आप कोई डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे जब कोई वेव प्लेट में क्वार्टर वेव प्लेट में पाई बाय 4 में एंटर करेगा देन हमारी सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस होता है। उस चीज को हम दिखाएंगे। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। देखो यहाँ पे इस चीज को लिख लो, a equals to b implies a cos theta equals to a sin theta, that implies theta equals to pi by 4। that is if the light which enter this plate, यहाँ पे अगर इस प्लेट में अगर ये 45 डिग्री में एंटर किया देन हमें क्या मिलेगी? देन हमें मिलेगी ओके, और दोनों पे फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होगा, देन वी कैन गेट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अभी इस चीज को समराइज करके हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। ओके, सो दे thus the emergent light is elliptically polarized। okay, ये okay, so this is the case of your फेज डिफरेंस इज दिस। तो समझ में आया बच्चे जितना अभी पढ़ा पहले? बताओ, ये जो डेरिवेशन है लॉन्ग डेरिवेशन, ये समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। ये तो लॉन्ग डेरिवेशन था। अभी आप बताओ ब्लैक बोर्ड बेटर है या ऐसे पीपीटी में देखना बेटर है? डेरिवेशन मैम पीपीटी बेटर है। हम पीपीटी ये इतना दिख नहीं रहा बोर्ड, नॉट विजिबल दिख रहा है मैम। ठीक है, जिसको भी देखो तभी मैंने दोनों दिखा दिया, क्योंकि कुछ चीज पीपीटी में शायद आपको मिस हो गया होगा, तो आप ऐसे अपना नोट्स बना लो पहले। ठीक है, अभी हम बाकी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये प्रोड्यूस करा सकते हैं, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं, वो चीज अभी डिस्कस करेंगे। सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, उसमें तो और कुछ नहीं है। जब निकोल प्रिज्म में
When I'm saying light is entering inside a Nicol prism, उसमें से जो हमने कल पढ़ा था ओ रे ई रे एक ही रे जो निकल के आता है, that is a plane polarized light. Okay, that is a plane polarized light we are getting. Okay, this is the प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. जैसे लाइट अनपोलराइज्ड एंटर थ्रू द निकोल प्रिज्म एंड इसके अंदर जो लाइट निकल के आएगा दैट इज ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट वी आर गेटिंग. ठीक है. सो हम उसको कैसे पता कर सकते हैं कि दिस इज ए सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट एंड इसको डिटेक्ट कैसे करा सकते हैं. लाइट यहाँ पोलराइज से गया एंड यहाँ पे इसके अंदर प्रोपागेट किया. अगर हम इसको निकोल प्रिज्म को घुमा के रख लेंगे देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो निकोल प्रिज्म से अंदर जो भी लाइट निकल के अगर समथिंग इज कमिंग, क्योंकि हम जब बताते हैं ये पोलराइज्ड है, वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन, हमें कोई यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट लिनियर मूवमेंट कुछ भी नजर नहीं आएगा. हमें क्या नजर आएगा, ओनली लाइट इंटेंसिटी. ठीक है. हम उसको एनालाइज करके देखेंगे वेदर दिस लाइट इज व्हाट टाइप ऑफ लाइट इज दिस. ठीक है. वेदर इट इज सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट. एंड जब निकोल प्रिज्म से सीधा लाइट निकल के आएगा उसको हम बता देंगे दिस इज योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इतना याद रखो. प्लेन पोलराइज्ड लाइट कब मिलेगा, व्हेन द लाइट इज एमर्जिंग फ्रॉम द निकोल प्रिज्म, दैट इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अभी यहाँ पे हम सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे निकोल प्रिज्म से लाइट निकल के आया, कौन सा लाइट आया, दिस इज योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड दैट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए क्वार्टर वेव प्लेट. ठीक है. क्वार्टर वेव प्लेट में जब ये एंटर करेगा एट एन एंगल 45 डिग्री. याद अंडरस्टैंड दिस थिंग. क्या मैं बोल रही हूँ इसको देखो. व्हेन इट विल एंटर इनसाइड द क्वार्टर वेव प्लेट एट एन एंगल 45 डिग्री. क्वार्टर वेव प्लेट क्या है बोलो, व्हाट इज क्वार्टर वेव प्लेट. क्वार्टर वेव प्लेट अभी पढ़ा था, क्या करता है ये क्वार्टर वेव प्लेट, क्या करता है बोलो फटाफट. क्वार्टर वेव प्लेट क्या करता है, इट क्रिएट्स ए फेज डिफरेंस ऑफ pi/2 और a path difference of λ/4 between the E component and O component. तो जब इसके अंदर लाइट प्रोपेगेट करेगा देन इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ, अरे बच्चे बोलो फेज डिफरेंस कितना हुआ जब क्वार्टर वेव प्लेट से निकल के आएगा. हाँ बच्चे बोलो. अरे क्वार्टर वेव प्लेट से जो निकल के आएगा तो फेज डिफरेंस कितना होता है, pi/4 होता है, pi/2 होता है ना. फेज डिफरेंस इज pi/2, पाथ डिफरेंस इक्वल्स λ/4. तो यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटर किया एट एन एंगल 45 डिग्री. ऐसे 45 डिग्री में इस प्लेट में एंटर किया. जब भी इमर्ज करके आएगा देन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, pi/2. तो हमारा ये केस क्या था, दिस केस इक्वल्स टू pi/2 एंड हमने क्या स्पेसिफाई किया था, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री दैट इज pi/4 में जब एंटर करके आएगा देन यू कैन प्रोड्यूस सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट. तो यहाँ पे भी वही चीज बता रहे, दिस इज ए लाइट इज कमिंग फ्रॉम द निकोल. यहाँ से निकोल आया, निकोल के अंदर से लाइट जो आया दैट इज अलाउड टू पास थ्रू द क्वार्टर वेव प्लेट एट एन एंगल 45 डिग्री. देन द जो रिजल्टेंट लाइट इससे जो इमर्ज करके लाइट आएगा दैट लाइट विल बी ए सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट. ठीक है. ये जो लाइट निकल के आएगा उसका स्टेट ऑफ पोलराइजेशन कैसे होगा, सर्कुलर. अभी बताओ इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड लाइट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो तो और भी इजी है. बोलो सेम फिगर में मुझे बताओ. ये फिगर दिख रहा है सबको, हाँ अरे फिगर दिख रहा है मैम. स्क्रीन हैंग हो गई. क्या हुआ, दिख नहीं रहा है. नो मैम. शेयरिंग नहीं हो रहा है, शेयरिंग तो दिखा रहा है. मैम शेयरिंग हो रही है लेकिन स्क्रीन अटक गई है एक पे ही, तो प्लेन से लाइट दिखा रहा है अभी. तो ये वाले जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है. मैम टाइटल ब्लैंक शीट एकदम ब्लैंक है, ब्लैंक शीट है. अभी दिख रहा है, यस मैम. दिख रहा है, यस मैम. क्या होता है, अभी भी तो वही चीज है. अब ये देखो, जस्ट सी दिस फिगर. ओके, अगेन यू सी दिस थिंग. ये चीज मैंने बताया अभी, अगर आपने सुना नहीं है तो देखो. ये क्या है, एक निकोल प्रिज्म है, इसके अंदर से लाइट प्रोड्यूस होके आया. ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अभी भी मैंने बोला था प्लेन पोलराइज्ड लाइट. दिस लाइट इज सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड दैट लाइट इज अलाउड टू एंटर थ्रू, ये क्या है, एक क्वार्टर वेव प्लेट.
ये क्या है, क्वार्टर वेव प्लेट में जब एंटर करके आएगा देन इसके अंदर भी स्प्लिटिंग होगी, इट विल स्प्लिट इनटू ओ कंपोनेंट एंड ई कंपोनेंट। देन क्वार्टर वेव प्लेट का काम क्या है बोलो, क्वार्टर वेव प्लेट क्या करता है, फेज डिफरेंस ऑफ π/2। अभी चाहे एलिप्स हो या सर्कल हो, दोनों के केस में हमने फेज डिफरेंस डेल्टा कितना दिखाया था, π/2 दिखाया था ना। यस मैम। आया था। अभी ये जब भी ये लाइट इसके अंदर जाएगा देन वी विल गेट आइदर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। जब इसमें स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे अगर 45 डिग्री में अगर क्वार्टर वेव प्लेट में एंटर करेगा देन द इमर्जेंट लाइट विल बी सर्कुलरली पोलराइज्ड, और अदर देन 45 डिग्री और कोई भी एंगल में अगर एंटर करेगा देन क्या मिलेगी, 45 डिग्री छोड़ के अगर और कोई एंगल में एंटर करेगी एलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट विल गेट। ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्शन जो है, पहले थ्योरी हमने पढ़ा वो कैसे होता है और उसको डिटेक्ट कैसे, पता कैसे चलेगा, करा कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द मेथड। मेथड के मतलब प्रैक्टिकली खाली निकोल प्रिज्म में जो लाइट आता है वो प्लेन पोलराइज्ड ही होता है, सर्कुलर करने के लिए हमें क्वार्टर वेव प्लेट के अंदर प्रोपागेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब प्रोपागेट कराएंगे 45 डिग्री देन विल गेट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, अदर देन 45 डिग्री विल गेट एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, समझ में आया। अब ये डिटेक्शन है, सब कितने बच्चों के पास बुक्स है, बुक है सबके पास, बहुत बच्चे आके लाइब्रेरी से बुक लेके गए थे। देवराज सिंह बुक है आपके पास? यस मैम, लेकिन खोली नहीं है। यस मैम है। उसमें देखोगे एक टेबल दिया है, देखो ये चैप्टर जब देखोगे ना उसमें लास्ट में एक टेबल दिया है, उस टेबल में फ्लो चार्ट करके ये दिखाया है, उसमें शायद एक मिस्टेक है, एक ही मिस्टेक है, एरो में एक जगह पे गड़बड़ है, बाकी छोड़ के उस फिगर में बता दूंगी क्या मिस्टेक है। एक थोड़ा सा एक जगह पे एरो का दूसरी जगह पे आ गया था, तो उस एरो का ध्यान रखना। तो उसमें ये दिखा रहा है कैसे हम इसको प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट जाएगा तो हम कैसे बोल सकते हैं वेदर इट इज प्लेन पोलराइज्ड, वेदर इट इज सर्कुलर, उसको कहा जाता है डिटेक्शन। डिटेक्शन हम इसको हम बताएंगे, उस टेबल को देख के आओ देन उसको आप फटाफट आप समझ जाओगे, ये चीज जो मैंने लिखा है ये उसी में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी ये विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ पोलरिमीटर, उसको भी बहुत चीज समझना है पोलरिमीटर में। उस टेबल को पढ़ना एंड उस टेबल को मुझे दिखा, आप पढ़ के देखो क्या गड़बड़ लग रहा है, एक गड़बड़ है मैं उसका आपको बता दूंगी, पहले टेबल आप देखो उस बुक से। ओके, चलो समझ में आया जो जो पढ़ा, टाइम आपका हो गया है, सो आई हैव टू स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास आपका स्टार्ट होगा। ओके, हाँ बच्चे क्या हुआ, सारे बच्चे सो रहे हैं क्या? क्या आया हम समझ? नहीं मैम, हम आ गया आ गया मैम समझ। आ गया? नहीं मैम। हाँ, किसको नहीं आया बोलो? अरे नहीं आया वो भी तो बोलोगे तभी तो पता चलेगा, हाँ या ना बोलो। सबको आ गया मतलब, नहीं किसने बोला अभी? शिव बोल दे भाई, शिव समझ नहीं आया। मैम आ गया है, मैं बोला था मैम। तुम कितना आ गया क्लास में एंटर कब किया था? मैम सुबह से बैठा हूँ यहाँ पर। हाँ सुबह से बैठे हो, ओके। सुबह तो थी नहीं क्लास। तुम तो पहले से आके बुक लेके गए थे? हाँ 9 o'clock तो स्टार्ट हुई है क्लास। हाँ शिव कुमार, तुम तो बुक लेके गए थे तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया? हाँ मैम, कल खोली है। हाँ ठीक है, कल खोल दिया ना, चलो हो गया। अभी एग्जाम का नोटिस भी आ रहा है, मैं आज बता दूंगी अगर कुछ होता है, पर ये 3 चैप्टर तो आपको आना ही आना है, पढ़ोगे। जैसे पहले 2 का तो आपने पढ़ा है, हम पहले बोल रहे थे प्रिपेयर हो गया होगा, बाकी ये चैप्टर पढ़ लेना, ये सबसे इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेशन। अभी पोलरिमीटर में जो आएगा जो चीज समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैम। हाँ बोलो मैम। अब एग्जाम है तो आप मंडे वाला टेस्ट लोगे या वो अभी होल्ड पे है? नहीं, अगर 15 को होगा तो वो टेस्ट तो नहीं लेंगे। ठीक है, मैं आपको आज कंफर्म कर दूंगी। ठीक है, कल तो मेरे पास मैसेज आया था पर मुझे थोड़ा सा डाउट था, दैट्स व्हाई मैंने कल ग्रुप में डाला नहीं था। आज मैं प्रॉपर आ जाएगी ऑफिशियली तो मैं डाल दूंगी। ओके, और कोई भी नोटिस या? हाँ बोलो। आप लास्ट के क्वेश्चन पेपर शेयर कर दोगे ताकि देखो जेब्रा सिंह बुक में ना पीछे सारे क्वेश्चंस है, आप सबने जो बुक लिया है उसके देखोगे सबसे लास्ट में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस है उसमें से आप देख सकते हो। ऑन एंड एवरी चैप्टर के पीछे जो शॉर्ट क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल है उतना कर लो, आपके लिए काफी है। ठीक है, तो चैप्टर के पीछे देखो शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हैं, शॉर्ट आंसर वाले, क्योंकि अभी अगर आज बता देंगे कि आपको अगर एमसीक्यू होता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होता है देन आपको लॉन्ग डेरिवेशन को बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लॉन्ग डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर आपको पीछे मिल जाएंगे, उतना पढ़ लो काफी है, बहुत ज्यादा होगा नहीं। बाकी आप लोग ने न्यूमेरिकल कर लिया है,
ट्यूट का लिखने का मतलब तो वही था कि आपका न्यूमेरिकल लिखने का प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ट्यूट लिखोगे, हम कराने के टाइम लिखते नहीं है, जब आप आएगा जब उसको लिखोगे ही तो लिखोगे ना, लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इतना चीज आप कर लिया तो आपका हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी आगे का टॉपिक क्योंकि सेकंड यूनिट तक जनरली आता है इसमें, तो ये सेकंड यूनिट तक क्या करेंगे उसको मैं पता नहीं, आपको मैं बाद में बता सकती हूँ व्हाट विल बी द सिलेबस, ठीक है। ये तीनों तो कंफर्म है, बाकी आगे का एक चैप्टर अगर होगा तो आ सकता है, नहीं आ सकता मैं आपको बताऊंगी, ओके। चलो लेट अस स्टॉप हियर। ओके मैम, नमस्ते।